हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च फिर एक रविवार, हालेलुया, हम यीशु मसीह की उपस्थिति में पूरी कलीसिया, हालेलुया, आपके साथ, हालेलुया, आपके स्क्रीन्स पर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को फिर एक बार हमें ऐसे आपके सामने लाने के लिए, यीशु मसीह का आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए हम लोग साथ आए, हालेलुया। फिर एक बार हम चाहते हैं कि सारे लोग जो भी घर में बैठे हैं खड़े रहें और हम यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़े रहें और आराधना करें हमारे साथ, हालेलुया। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड, हालेलुया। एज वी हैव गैदर्ड इन दिस प्लेस टुडे, लेट्स वेलकम द होली स्पिरिट and let's tell the Lord that have your way in our houses, in our hearts today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, Lord, draw near. It's your voice, it's your voice we long to hear. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. अपने हाथों को उठाकर your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you, Holy Spirit. In our midst, our Father, we welcome you. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you in our houses. We welcome you in our hearts, Lord Jesus. Take your place, Holy Spirit. Hallelujah. Take control over every place, every house, every person. Everyone who's standing, Lord Jesus, for the God to worship you. Every hand that is lifted up, Lord Master, we welcome you.
We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Master. It's your house, it's your home. Take your place, Lord Jesus. Take your place, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. King of Kings, Lord of Lords, we worship you. We worship you. We worship you, Lord. This is your house, Lord Jesus. This is your home, Abba Father. We welcome you. We welcome you this Sunday morning, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for pouring out in abundance once again, God. Thank you, Master, for touching our hearts once again, God. Thank you, Master, for talking to us, Lord Jesus, this morning. Waking us up for your worship, for your praise, Lord Jesus, for the God. Thank you, Master, for breathing in us once again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, as we worship you, as we continue to praise and worship you, and as we have our people across, Lord, many places, Lord Jesus, they are standing, they have logged in, Lord Jesus, for the God, to experience you, experience your power, Father God, manifest, Lord Jesus. If there is anyone who is sick, who is burdened, Lord Master, release them today, Lord Master, by your mighty power, God Jesus. Thank you, Abba Father, for your grace. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 ये जोरदार स्तुति हो जाए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा. तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा. मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ. राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. करुणा हमें अव्वल है, माफी में कामिल है. करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है. पास तेरे रहता वे वो दिल में आएगा, पास तेरे रहता है वो दिल में आएगा. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ. चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ. राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. आंसू को पोंछेगा, हाथों को थामेगा. आंसू को पोंछेगा, हाथों को थामेगा. दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा.
नुसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। Let's continue to be in His presence. Hallelujah. Let's bless the Lord. Hallelujah. It's time to forget everything. सारी चीजों को भूल जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Let's worship Him. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You are rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Oh, Lord, I worship your holy name. 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 I worship you. Lord, we thank you for your word, Lord. Worship you. तेरे वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। उस अंधकार से परमेश्वर हमें निकाल कर आज इस रोशनी में लेकर आया। तेरा वो वचन परमेश्वर हमारे पाँव का उजियाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वचन मेरे पाँव का उजियाला, दीपक ही मार्ग ही जीवन को करता निराला। यीशु तेरा वचन मेरे पाँव का उजियाला, दीपक ही मार्ग ही जीवन को करता निराला। यीशु तेरा वचन मेरे सोने से उत्तम, कुंदन से बढ़कर मनोहर है। वो तो मधु के उत्तम मधु में बढ़कर कितना मधुरतम है। तेरा वचन सोने से उत्तम, कुंदन से बढ़कर मनोहर है। वो तो मधु के उत्तम मधु में बढ़कर कितना मधुरतम है। यीशु तेरा वचन मेरे पाँव का उजियाला हो, दीपक ही मार्ग ही जीवन को करता निराला। यीशु तेरा वचन मेरे कोई मुझे ना रोक सकेगा तेरे वचनों पर चलने से। कोई जुदा ना कर सकेगा मुझको तेरी महा
वचनों पर चलने से कोई जुदा ना कर सकेगा मुझको तेरी मोहब्बत से। यीशु तेरा वचन मेरे पाँव का उजियारा, ओहो दीपक यही मार्ग यही जीवन को करता निराला। यीशु तेरा वचन मेरे समय परमेश्वर तू अच्छा है। हर समय हर घड़ी परमेश्वर तू अच्छा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड Jesus. तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब तक जी हूँ कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब शत्रुआ करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे। जब शत्रुआ करने लगे मेरे निकट सब गिरने लगे। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूँ, नहीं छू सकता जब साथ हूँ। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूँ, नहीं छू सकता जब साथ हूँ। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब शेरों के मैं बीच पड़ा सोचा जीवन अब अंत हुआ। जब शेरों के मैं बीच पड़ा सोचा जीवन अब अंत हुआ। उसने भेजा अपना स्वर्गदूत
मसीहा प्रभु यीशु उसने भेजा अपना स्वर्गदूत मेरा मसीहा प्रभु यीशु तू अच्छा है मेरे प्रभु तू अच्छा है मेरे प्रभु जब तक जीऊं कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु तू अच्छा है मेरे प्रभु तू अच्छा है मेरे प्रभु जब तक जीऊं कहता रहूं। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद कर तू अच्छा है प्रभु हर वक्त हर समय तू अच्छा है। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर थैंक यू जीसस। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on Sunday morning. और रविवार के सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है And welcome you once again on this online church service. और फिर से एक बार ऑनलाइन कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता I हूँ। hope so the Lord will speak to you today. अब मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा Today we are going to speak on who shall open the iron gate. और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन है जो लोहे के दरवाजे को खोलेगा। And it is very interesting to know again we are coming on Mary. और ये बहुत ही रुचिमय है कि फिर से एक बार हम मरियम के बारे में सुनने वाले हैं। This Mary is the mother of John who was called Mark. और ये जो मरियम है वो यूहन्ना की माँ है जिसको मार्क कहलाया Who जाता was a very है very prayerful lady who had opened her house for prayer. और जो बहुत ही प्रार्थना में स्त्री थी जिसने प्रार्थना के लिए अपने घर को खोला। Let's read the Acts of Apostles chapter 12. और आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। This is very famous scripture in my life. और ये मेरे जीवन का बहुत ही प्रसिद्ध वचन I है have preached it many times. और मैंने बहुत बार प्रचार किया But I है hope so the Lord will speak to you. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात We करेगा। are reading from Acts of Apostles chapter 12. और हम पढ़ने वाले प्रेरितों के काम 12 अध्याय से From verse 1 onwards we are going to read और एक वचन से हम पढ़ने वाले हैं till 16. और 16 आयत तक। And now about that time Herod the king put forth his hand to afflict certain of the church. We are reading it in Hindi. और हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और चार सिपाहियों के 4 पहरे में रखा, इस विचार से कि फसक के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोग लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहिरुए दौर पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की फसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है।
यह जानकर कि वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। तब पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रह गया। अंत उन्होंने खिड़की खोली और देखा, उसे देखकर चकित हो गए। Yes, praise the Lord. Praise the Lord. You should understand the situation of the church this time. और आपको इस समय की कलीसिया की हालत को समझाना है। Bible says in chapter 11 there was famine in the entire world. और बाइबल कहते हैं कि जो एक ऐसा पूरे संसार में एक ऐसी हालत थी उस समय में, The church was going through famine. और जो कलीसिया है वो सताव से गुजर रहा था, And famine, अकाल पड़ चुका था. और जो अकाल से गुजर रहा था। And after the famine, Herod comes and beheaded James. और जो अकाल के बाद जो है वो हेरोदेस राजा आकर यहूदा को मारता है। James is the disciple of Jesus Christ. और जो याकूब है वो यीशु का चेला था। He has been beheaded by Herod. और उसका जो है सर कटवाया गया था। Now Herod catches Peter अभी जो हेरोद है वो पतरस को पकड़ता and है he puts him in the prison. और वो उसे जेल में रखता है। Bible says he is chained. और बाइबल कहती है कि उसको जंजीरों में बांधा गया And there था। are 4 squad which is kept watching over him. और वहां पे 4 सिपाही थे जो उसके पहरेदार थे। 4 squad means every squad has 4 soldiers, total 16 soldiers. और 4 सिपाही यानी कि हर एक सिपाही के बाद 4-4 सैनिक होते थे जो 16 गिने जाते हैं। And Peter was in the custody of Herod. और जो पतरस था वो हेरोद के जेल खाने में था। And now it is very interesting to note. और यहाँ पे बहुत ही रुचिमय है जानना। Now the interesting is the church was praying. और रुचिमय बात यह है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही The थी। church was praying. और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। Now the question is, और अभी सवाल ये है, when James was beheaded, whether the church was praying or not? और जब याकूब का सर कटवाया गया था तब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी या नहीं? What is your और opinion? आपका ख्याल क्या है? I believe the church was still praying for James. और मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया फिर भी याकूब के लिए प्रार्थना कर रही But थी, this prayer was not answered. लेकिन ये प्रार्थना का उत्तर नहीं सुना And गया। James was beheaded. और याकूब का जो है सिर कटवाया गया। After the pandemic times, we have come to a place where the church prayers need to be और answered. अकाल के बाद हम एक ऐसे समय में आए कि जहां पे कलीसिया की प्रार्थना क्या सुनी जाएगी। James was beheaded. और याकूब का सर कटवाया गया था। Church praise was not answered by God. और कलीसिया की प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा नहीं सुनी गई। But the church was not giving up. लेकिन कलीसिया ने हार नहीं मानी थी। The church started knocking the door of God. और कलीसिया परमेश्वर के दरवाजों को खटखटाने It लगी। is the time for you to knock the door of और heaven. ये समय है आपके लिए कि दरवाजों को खटखटाए स्वर्ग Many के। people, beloved ones, have lost their life in pandemic. Many people's prayer are not और answered. बहुत सारे प्रियजनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। अकाल के समय में बहुत जनों की प्रार्थना नहीं सुनी गई In है। these COVID times, many prayer remained और unanswered. अकाल के समय में, महामारी के समय में बहुत सारी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई है। People have a question, why did God answer our और लोगों prayer? का सवाल है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। But this early church was little different. लेकिन ये शुरुआत की कलीसिया थोड़ी अलग थी। Bible said they were persistently praying. और बाइबल कहती कि वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। They were persistently और praying. वे लगातार प्रार्थना कर रहे They थे। were persistently और वे praying. लगातार प्रार्थना कर रहे थे। Now, already they had one incident where God never answered their prayer. और अभी ऐसी घटना हुई थी उनके साथ जहां पे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना था। You might have had the same situation in your life. और शायद आप भी अपने जीवन में ऐसे ही हालात से गुजरे होंगे। You might have prayed for many times, but the prayer of yours may not get और answered. शायद आपने कई बार प्रार्थना किया होगा लेकिन आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया गया है। And if your prayers are not answered, what is the status of your faith? और अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया गया है तो आपका विश्वास की स्थिति कहां होती है? Let me tell you, our faiths are shaken
shaken up. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा विश्वास हिल जाता है, But the church was not giving up. They were still praying. लेकिन उस समय की कलीसिया ने हार नहीं मानी थी, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे। What they were praying for, we don't know. और जो कुछ प्रार्थना करते थे वो नहीं सुना गया था, What they were praying, we do not know for Peter. और जो क्या प्रार्थना करते थे हम नहीं जानते थे पतरस के बारे में। Whether they want Peter to get released or whether they want Peter to be peaceful and go through what Herod is going to do. और पतरस छूट जाए या पतरस जो है वो शांति में वहां पे रहे, क्या प्रार्थना करते हम नहीं जानते, But the church was earnestly praying. लेकिन कलीसिया जो है वो प्रार्थना कर रही थी। I want to tell you something about Peter. और मैं पतरस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Peter was very, very powerful. और जो पतरस है वो बहुत ही सामर्थ्य था, And that is why 16 guards were kept to see that he doesn't go out of the jail. और इसलिए जो है उस 16 सिपाही को पहरे में रखा गया था ताकि वो जेल से बाहर ना जाए। Herod was knowing Peter had a power of God. और हेरोद राजा जानता था कि बाइबल के परमेश्वर के पास सामर्थ है। Peter had done demonstration of the power through the Holy Ghost. और जो पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सामर्थ को दिखाया था। Herod had heard Peter made the lame to walk. और हेरोद ने सुना था कि जो पतरस के द्वारा लंगड़ा चलने लगा था। Let me tell you, Peter, who was a disciple of Jesus Christ, was totally changed now. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पतरस परमेश्वर का चेला है वो अभी पूरी रीति से बदल गया था। He became so powerful that 16 guards were kept to watch over और वो him. इतना सामर्थ्य बन गया था कि 16 सिपाही उसके पहरा रखने के लिए रखे गए थे। Looking at the physique of Peter, 2 were also more than enough. और जो पतरस के शरीर को देखने के द्वारा हम सोच सकते हैं कि 2 भी सिपाही उसके लिए काफी थे। He was totally changed. और वो पूरी रीति से अभी बदल गया था। He was totally in chains. और वो पूरी रीति से वो सांकलों में था। And still there were guards watching over लेकिन him. फिर भी सिपाही उसके ऊपर पहरेदार रखे गए थे। Next day, Peter was going to be beheaded. और अगले दिन में पतरस का सर कटवाने वाले थे। Herod came to know Jewish people are becoming happy. और हेरोद जान पाया कि जो यहूदी लोग हैं वो इससे आनंदित है। Because when he beheaded James, everybody was happy. लेकिन जब याकूब को सर कटवाया गया था तभी भी वो लोग खुश थे। The church was under tremendous pressure. लेकिन जो कलीसिया है वो निराश में थी। And that is why they kept on praying. और वो प्रार्थना करने लगे थे। I want to tell you about Peter. और मैं पतरस के बारे में आपको बताने वाला Now, हूँ। in this passage, Peter was sleeping before he was going to get executed. और इस अध्याय में जो पतरस है वो सो रहा था उसका सर कटवाने से पहले। There was tremendous pressure. और वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर था। Tremendous pressure. और बहुत ही दबाव था उसके ऊपर। Tomorrow he is going to die. और कल वो मरने वाला है। Can you know a man tomorrow is going to die and he's sleeping peacefully? और क्या आप जान सकते हैं कि कल वो आदमी मरने वाला है लेकिन यहाँ पे वो शांति में सो रहा है। The church was earnestly praying. और कलीसिया जो है वो प्रार्थना कर रही थी। Let me tell you, when somebody prays for you, even though in the midst of crisis, God gives you sound sleep. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, अगर आप किसी भी हालात में हो तभी भी आप जो है वो शांतिमय मन से रहोगे। Many times we do not know who is praying for और us. कई बार हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है। Church was praying for Peter. Peter was not knowing और that. कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करी थी लेकिन पतरस नहीं जानता था ये। Church had no hope because James' prayer was not और answered. कलीसिया के पास कोई आशा नहीं थी क्योंकि याकूब की प्रार्थना नहीं सुनी गई थी। The faith of church was shaken up. और जो कलीसिया का विश्वास हिल गया था Still they were praying. लेकिन वो फिर भी प्रार्थना कर And रहे थे। because of the church prayer, there was a peace on Peter's life. और कलीसिया प्रार्थना कर रही इसलिए पतरस के जीवन में शांति थी। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ in the midst of crisis, if you get sleep, it is not your body sleep, but it is God's given sleep. और परिस्थिति में कठिन परिस्थिति में भी अगर आप शांति में होते तो इसलिए नहीं कि आपका शरीर सोता है लेकिन कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Let me tell you, the sleep comes from God. It is God given sleep in the midst of crisis. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नींद है वो परमेश्वर से आती है और खराब स्थिति में भी जब नींद आती है तो वो परमेश्वर आपको देता If you है। read verse 6, Peter was sleeping. और जो पतरस है यहाँ पे वो सो रहा था Chains were there, but still he was sleeping. और उसको जो है सांकलों से बांधा गया था फिर भी वो सो रहा था। I would like to take you to the Garden of Gethsemane. अब मैं गत्समनी के बगीचे में आपको लेके जाना चाहता Here हूँ। Peter was there when Jesus was praying. और वहां पे जो है यीशु प्रार्थना कर रहा था पतरस के लिए।
Jesus was praying to God the Father. और जो यीशु है वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर In रहा the था। Garden of Gethsemane, it was the very, very crucial time for Jesus और Christ. गत्समनी के बगीचे में जो है वो बहुत ही खतरनाक समय था उसके लिए। Jesus was going to face the death of cross. और जो यीशु है वो कलवरी क्रूस पर मृत्यु का सामना करने वाला Bible था। says his tears became और blood. बाइबल कहती कि उसके आंसू जो है वो लहू बन गए And so much he was praying. और वो बहुत ही प्रार्थना कर रहा था। And here Peter, who was accompanied along with Jesus Christ, he was sleeping. और लेकिन यहीं पे यहाँ पे जो है पतरस जो यीशु के साथ था वो यहाँ पे सो रहा है। Why he was sleeping? Because his flesh was weak. और क्यों वो सो रहा था? क्योंकि उसका शरीर जो कमजोर बन चुका था। I would like to tell you another incident of Peter. और मैं पतरस का और एक घटना बताने वाला हूँ। When the disciple and Jesus Christ was in the boat and the boat faced the storm. और जब यीशु के चेले जहाज पर जा रहे थे तो बोट जो है वो डूब रही थी It faced the storm. और वो आंधी का सामना कर रही And when it थी। faced the storm, और जब वो आंधी का सामना कर रहे थे जहाज Peter में, started waking up और Jesus. जब पतरस है वो यीशु को उठाने लगा Please get up, we are going to और die. उठ जा हम मर रहे हैं। Please get up, we are going to और die. उठो हम मर रहे हैं। Now let me tell you, he knew that tomorrow he is going to die in this situation, but still he was और sleeping. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस स्थिति में वो जानता था कि कल वो मरने वाला है लेकिन फिर भी वो सो रहा था। Now Jesus prayed in the Garden of और Gethsemane. यहाँ पे यीशु जो है वो गत्समनी में प्रार्थना कर रहा था। Lord, let this cup of grief pass और by. परमेश्वर ये जो प्याला है मृत्यु का वो हटने दे। God the Father never answered the prayer of Jesus और पिता Christ. परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया Instead of that, he gave him supernatural strength to go through the cross. और इसके बजाय उसने यीशु का अलौकिक सामर्थ दी ताकि उस क्रूस से वो जा सके। Many times we do not know and we can't expect explanation from God the Father. और कई बार हम नहीं जानते कि परमेश्वर की आशा हमसे उम्मीद क्या होती है। We cannot expect explanation from God the Father. और हम आशा नहीं रख सकते कि परमेश्वर हमें इसका विवरण दे। That is the reason what happened. Jesus' prayer was not answered, but God gave him supernatural और strength. यही कारण है कि यीशु की प्रार्थना सुनी नहीं गई थी लेकिन उसको अलौकिक सामर्थ मिली परमेश्वर से। Bible never says whether the church prayed when James was beheaded. और बाइबल कभी नहीं बताती कि जब याकूब का सर कटवाया गया था तब कलीसिया प्रार्थना कर रही But I थी। definitely believe the church might be praying. अब मैं लेकिन निश्चित करता हूं कि जो कलीसिया है वो प्रार्थना कर रही थी And but the prayer was not लेकिन answered. प्रार्थना सुनी नहीं गई थी। The prayer was not प्रार्थना answered. सुनी नहीं गई थी The prayer was not और answered. प्रार्थना नहीं सुनी गई And थी। now here Peter is sleeping. अभी यहाँ पे पतरस सो रहा है Peter is और sleeping पतरस सो रहा है because he has peace of God upon his life. क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की शांति थी। And why it is so? और ये ऐसा क्यों था? Why it is so? और ऐसा क्यों It था? is because church is praying for him. क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही The थी church is praying for him. और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। Now let's look. This is the changed Peter. और आइए देखते हैं कि इसको पतरस को बदल दिया। Peter was totally changed. और जो पतरस था वो पूरी तरह से वो सांकलों में था। Now let's look to the further scripture. और आइए अगले आयतों को देखते हैं। And he was sleeping there, and the angel of the Lord came. और वो वहां पे सो रहा था और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे आता है There was total light in the prison. और पूरे उस बंदी गृह में उजाला हो गया। Oh, the angel was standing next to him. और जो स्वर्गदूत उसके बाजू में खड़ा हो गया। In spite of such a big light, Peter was not able to get up. और इतने बड़े प्रकाश के बावजूद पतरस उठ नहीं पा रहा था। Why? Because he was in deep sleep. क्यों? क्योंकि वो गहरे नींद में था। Bible says sleep is given by the और Lord. बाइबल कहती कि जो नींद है वो परमेश्वर से मिलती है। Hallelujah. Hallelujah. Church was praying. और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। Peter was not under pressure. और जो पतरस है वो दबाव में नहीं He था। was knowing Jesus is sitting on the right hand of the और Father. वो जानता था कि यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ He was है। knowing tomorrow if he is executed,
that he is going to go before the presence of the और वो Lord. जानता था कि कल उसका सर कटवा देते हैं तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा He बैठेगा was not bothered what is going to happen और वो tomorrow. चिंतित नहीं था कि कल क्या होगा Because he was knowing the end result where he has to और go. क्योंकि वो जानता था कि अंत क्या है और उसको कहां पे जाना है Those who know their end, और जो अपने अंत को जानते they हैं are never और afraid. वो कभी नहीं डरते They are never और वो panic. कभी डरते नहीं हैं Because why? Because they know that they have to be in the best place that is और heaven. क्योंकि वो जानते हैं कि उनको सबसे एक उत्तम जगह में रहने जाना है Those who believe Jesus Christ, और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं that they believe that Jesus died for their और sins, वो विश्वास करते हैं कि यीशु उनके पापों के लिए मरा who was buried and was resurrected on the third day, और जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ who took away their sins. और जिसने उन्होंने उनके पापों को ले लिया Those people are not afraid of death. और वे लोग जो है वो मृत्यु से नहीं डरते This is हैं what Jesus said in John 11:25. और यही यीशु ने यूहन्ना में कहा I am the resurrection and the life. और मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ I am the resurrection and the और मैं life. पुनरुत्थान और जीवन One who हूँ believes in me shall never और die. जो विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा One who believes shall never और जो die. विश्वास करे वो कभी नहीं मरेगा This is the message for you, those who are listening. और ये वचन उनके लिए है जो लोग सुन रहे हैं इस समय If में you are on the deathbed, अगर आप जो है even if you are on the deathbed, अगर आप एक मृत्यु के बिस्तर पे भी हैं even though if you are sick, अगर आप बीमार भी हैं even though if you are going through problems, अगर आप समस्या से भी जा रहे हैं even if you are chained, अगर आप सांकलों में भी हैं still remember the Lord is और faithful. फिर भी याद रखिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है The Lord is और faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है Such a deep sleep Peter had. और जो नींद गहरी नींद में था Such a deep sleep Peter और had. जो नींद गहरी नींद है And the angel came. और जो स्वर्गदूत आता You know है what the angel did? और क्या किया स्वर्गदूत ने In spite of such a big light on the cell, still Peter never got up. और जो उसने एक बड़ी ज्योति को प्रकाश को वहां पे लाया फिर भी पतरस सो रहा था You know what the angel did? और स्वर्गदूत ने क्या किया Bible says the angel struck Peter. और बाइबल कहती कि स्वर्गदूत ने पतरस को मारा And struck Peter. और पतरस को मारा Do you know this is the angel of God? और आपको पता है ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था And he said to him, woke up. He और- woke him up and said, get up quickly. और उसने उससे कहा उठ जा और Get up quickly. और उसने कहा कि जल्दी उठ जा Get up quickly. और जल्दी उठ जा Now this is what the angel was speaking. और यही जो है बात वो एंजल स्वर्गदूत कह रहा था This is what the angel was speaking. और जो ये स्वर्गदूत कह रहा I want है to tell you three things which the angel spoke. और मैं बताना चाहता हूं कि 3 चीजें जो स्वर्गदूत ने In the बताया midst of difficulties and crisis. और कठिन समय में मुश्किल हालात में Now something which God speaks in the crisis, we should know. और कठिन परिस्थिति में अगर परमेश्वर कुछ बात करता है तो हमें उसे जानना है He said, get up quickly. और उसने कहा कि जल्दी उठ Now Peter never asked a question to angel, how I can get up. और जो पतरस है वो ये स्वर्गदूत को ये सवाल पूछ सकता था कि मैं कैसे उठूं My hands are already and legs are in chain. I cannot get up. और मेरे हाथ पैर जो है वो बेड़ियों में है मैं उठ नहीं सकता Peter never asked the question. और पतरस ने सवाल नहीं पूछा When God tells you something to do, और जब परमेश्वर कुछ करने वाला है when God tells you something to और do, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है don't ask him question. और उससे सवाल न कीजिए Just follow the instruction. और उसके सूचना का पालन I करिए remember Jesus at the Bethesda और pool. मैं याद रखता हूँ यीशु को जो बेतसैदा के पुल के 38 सामने years that man was lying there. और जो मनुष्य वहां पे पड़ा हुआ था 38 years he was lying और there. 48 साल से मनुष्य वहां पे पड़ा हुआ था He was totally crippled. He couldn't stand. He couldn't walk. He was there lying for 38 years. और वो पूरी रीति से लंगड़ा लूला था और वो 38 साल से वहां पे पड़ा हुआ था Jesus said, take up your mat and walk. और यीशु ने कहा तेरी छठी उठा और चल This man never asked the question, how I can do this. और इस मनुष्य ने सवाल नहीं पूछा कि मैं ये कैसे करूं Those who don't ask question to God are the one who sees the miracle. और जो लोग यीशु का सवाल नहीं पूछते वो वे लोग हैं जो चमत्कार को देखते हैं Let me tell you,
Peter got up. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस उठ गया। Peter would have said to the angel, how I can do that? I have been chained. और पतरस स्वर्गदूत को कह पाता था कि मैं कैसे उठूं, क्योंकि मैं बेड़ियों में बांधा गया हूँ। First, please open my chain. और पहले कृपया करके मेरी बेड़ी को खोल। Let me tell you, your chains cannot be broken unless and until you get up. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बेड़ियां तब तक खुल नहीं सकेगी जब तक आप उठ नहीं जाते। Peter got up following the instruction of the और जो angel. पतरस तुरंत उठ गया जब स्वर्गदूत ने उसे कहा। As soon as he got up, the chains fell down. और जैसे वो उठ गया, जो चैन थी, बेड़ियां थी, वो खुल गई। The second statement which the angel spoke to जो Peter, दूसरी बात जो स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, dress yourself and put on your sandal. और जो वस्त्रदार और अपने जूते पहन ले। Dress up yourself and put your sandal. और वस्त्र पहनकर अपने जूते डाल। Now let me tell you, Peter never asked why I should do this. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस ने नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों करूं, Why should I do this? और मुझे ऐसा क्यों करना है, Why I should put up my dress? और क्यों मुझे अपने वस्त्र पहनने हैं, Why I should put up my और sandals? कुछ क्यों मुझे अपने जूते पहनने The हैं। angels were giving instruction. और जो स्वर्गदूत यहाँ पे सूचना दे रहा है, We need to follow the instruction of और God. हमें परमेश्वर की सूचना को मानना है। Don't ask why to do it. और ये न पूछे कि इसे क्यों करूं, Don't ask how to do it. और इसे न पूछे कि ऐसे ये कैसे करूं। Many times you will not be able to know what God says to do, and you find it difficult to do. If you do it, you will see the miracle. और कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है और हम उसमें कठिनाई पाते, लेकिन अगर हम करते हैं तो परमेश्वर वहां पे चमत्कार करेगा। Angel said to और Peter, स्वर्गदूत ने पतरस को कहा, dress up, और उठ जा, dress up, और वस्त्र पहन, and put your और sandal. अपने जूते पहन ले। Without a question, और बिना सवाल के Peter put on the dress. और पतरस ने अपने वस्त्र को पहना, Peter put on the sandal. और जो पतरस ने अपने जूते को पहना, He never knew why he was doing. और उसने सवाल नहीं किया कि ये क्यों करना है, He was never knowing why he is और doing. वो नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा But है, still he followed the लेकिन instruction. फिर भी उसने सूचना का पालन किया। My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, my dear और friends, मेरे प्रिय मित्रों, God is not there to explain और you. परमेश्वर इसलिए नहीं कि आपको पूरा विवरण दे दे, God is there to make you to follow His और परमेश्वर instruction. इसलिए है ताकि आप उसकी सूचना का अनुकरण करें। Your little mind will not be able to understand. और आपका छोटा जो मन है, बुद्धि है, वो समझ नहीं पाएगी, Your brain is very, very और limited. आपकी जो बुद्धि है वो सीमित है। The Lord has a vast thinking for you. लेकिन परमेश्वर की ख्याल आपके बारे में बहुत ही बड़ी है। Let me tell you something today. मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ, No weapon formed against you shall prosper. और कोई भी हथियार नहीं है जो आपके प्रति प्रबल होगा, No weapon formed against you shall prosper. और कोई भी हथियार नहीं बनाया गया जो आपके प्रति प्रबल होगा, Because Jesus is with you. क्योंकि यीशु आपके साथ है, The one who is the creator of heaven and the और earth. जो सारी पृथ्वी का सृष्टि करता है, The one who is the spoken word. और जो शब्द को बोलने वाला है, He is with और you. वो आपके साथ है, He is with और you. वो आपके साथ And you है। know what happened? और पता है क्या होता है, Peter put the dress and put the और sandal. पतरस ने वस्त्र को पहना और जूते को पहना। The next instruction came from the और जो angel. दूसरी सूचना पतरस से आई, The पतरस next को आई, instruction came from the और angel. जो दूसरा सूचना स्वर्गदूत से मिला, Follow me. और मेरा अनुकरण कर, Follow me. मेरे पीछे हो ले, Follow me. मेरे पीछे हो ले, Follow me. मेरे पीछे हो ले, Follow me. मेरे पीछे हो ले। Yes, Peter never asked question where. और हाँ, पतरस ने सवाल नहीं किया कि कहाँ पे, Where I should follow और you. कहाँ पे मुझे पीछे आना है, Where I am going. और कहाँ पे मुझे आना है, No questions to the और angels. कोई सवाल नहीं है स्वर्गदूत को। Peter started following the और angel. पतरस जो है वो स्वर्गदूत के पीछे चलने लगा। I want to tell you today, और मैं आज आपको बताना if वाला you are in हूँ, the midst of the problem, अगर आप समस्या में हैं, if you are in the midst of crisis, अगर आप समस्या के बीच में if you हैं, are thinking there is no future in your life, अगर आप सोच रहे कि आपके जीवन में कोई भविष्य नहीं if है, you think there is coming an end to your life, अगर आप सोच रहे कि आपके जीवन में कुछ बात नहीं है, don't give up. और छोड़े नहीं, At the last moment also the Lord shall और intervene. अंत तक भी परमेश्वर इसको बदल देगा। Peter would have asked God, और पतरस
परमेश्वर को पूछ सकता था, why you came at the last moment? और तू क्यों आया अंत में? Tomorrow I was going to get executed. कल ही मेरा सर कटने वाला है। You would have come 3 days before. और तू 3 साल पहले आ सकता था, But you never came 3 days before. लेकिन 3 साल पहले कभी नहीं At the आया। last night, Peter, the Lord appeared in the form of angel. और अंतिम रात्र में जो परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप में आता है, Let me tell you, beloved. मैं आपको बताना चाहता हूँ Peter प्रियो, started following. और पतरस पीछे होने लगा, Peter started और following. पतरस पीछे चलने Bible लगा। says he was not knowing that this is the reality. और बाइबल कहती कि वो नहीं जानता था कि ये सच है, He was thinking that he's walking in the sleep. और वो ये सोच रहा था कि वो दर्शन में चल रहा है, He was thinking that he has seen a vision. और वो ये सोच रहा था कि उसने दर्शन को देखा But he है। started following the angel. वो स्वर्गदूत के पीछे चलने He लगा, started following the और वो angel. स्वर्गदूत के पीछे चलने In लगा। verse 10, it is very, very clearly written. और जो 10वीं आयत में बहुत ही स्पष्ट लिखा गया They है, passed the first guard. और तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे। They came to the iron gate. और जब वो लोहे के फाटक के पास आए, They came to the iron gate. लोहे के फाटक के पास Who will आए, open the gate? और किसने उस फाटक को खोला? Who will open the gate? और कौन उस फाटक को खोलेगा? Peter was standing at the gate. और जो पतरस फाटक के पास खड़ा था, Peter was standing at the gate. और जो पतरस फाटक के पास खड़ा Bible था, says the gate automatically और opened. बाइबल कहती कि गेट अपने आप खुल गया। When God is with you, और जब परमेश्वर आपके साथ there is है, no one needed to open the gate for you. और वहां पे किसी की जरूरत नहीं कि आपके लिए दरवाजा खोले, The Lord shall open the gate. और जो है वो गेट अपने आप The खुलेगा। gate was iron gate. और जो गेट था वो जो लोहे का था, The gate was very, very strong. और जो दरवाजा था वो बहुत ही मजबूत था, The gate was an obstruction for Peter to enter into the city. और जो फाटक वो एक ऐसी रुकावट थी पतरस को शहर में जाने के लिए। Without God opening the gate, Peter couldn't carry on the journey. अगर परमेश्वर उस फाटक को नहीं खोलता था तो पतरस आगे नहीं बढ़ सकता था। Your question today, और ये सवाल है आपके लिए, who shall open my iron और gate? आपके लोहे का फाटक कौन खोलेगा? Who shall open my iron gate? और मेरे लोहे का फाटक कौन This खोलेगा? was happening because the church was praying. और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। Two things which I want to focus today. और 2 चीज मैं आपके ध्यान में लाने वाला हूं आज। Persistent prayer shall bring peace. और जो पहली बात कि जो लगातार प्रार्थना है वो शांतिमय देती है, Persistent prayer shall bring peace. और जो लगातार प्रार्थना है वो शांत मन देती You है। need someone to pray for you. आपको चाहिए कि कोई तो आपके लिए प्रार्थना करे। Our number is coming on the screen. और हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा If you है, have any prayer request, send it to us. The church will pray. और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें भेज सकते हैं, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी। Peter remembered what Jesus और said. पतरस ने याद रखा जो यीशु ने कहा था, Peter remembered what Jesus और said. पतरस ने याद रखा जो यीशु ने कहा था, I will build my church. और मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, The gates of Hades shall not come against it. और जो अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। In the strongest point of the devil's attack, only church has the power. और जब जो शैतान हल्ला करता है तो चर्च के पास ही, कलीसिया के पास ही सामर्थ है उसको आक्रमण को रोकने के Our लिए। number is coming on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, Please share your prayer और request. कृपया अपने प्रार्थना निवेदन को भेजिए, Please share your prayer और request. कृपया अपने प्रार्थना निवेदन को The भेजिए, church will stand. और कलीसिया खड़ी हो The जाएगी, church will और stand. कलीसिया खड़ी हो जाएगी, Iron gates will be opened. और जो लोहे का फाटक है वो खुल जाएगा। You may think it is not possible. अगर आप सोचते कि ये संभव नहीं है, This is not possible. और ये संभव नहीं है, What is impossible with man is possible with और God. जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। Don't limit your God. और परमेश्वर को सीमित ना रखे, Don't limit your God. परमेश्वर को सीमित ना रखे। It was Peter who was going to face death. और ये पतरस था जो इसका सामना कर रहा It था, was Peter who was going to face death. और जो पतरस था जो मृत्यु का सामना करने वाला The था, church was praying. और कलीसिया प्रार्थना कर In the रही थी, garden of Gethsemane, और गत्समनी के बगीचे में Jesus was going to face death of the cross. और यीशु क्रूस पर मृत्यु का सामना करने वाला था, But Peter was not praying for Jesus. लेकिन पतरस यीशु के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा Peter था, was sleeping. और पतरस सो रहा था, He was a very weak person. और वो बहुत ही कमजोर
व्यक्ति था Jesus was praying for himself to God. और यीशु खुद के लिए प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। But here in the prison, लेकिन यहाँ पे जेल में when he was going to face death, जब बंदीगृह में वो मृत्यु का सामना करने the वाला church था was praying. और कलीसिया प्रार्थना कर रही The थी church was और praying. कलीसिया प्रार्थना कर That रही is थी the reason Peter had a peaceful sleep. और यही कारण था कि जो पतरस है वो आराम से सो रहा था Prayer of the church remove all the anxiety and worry. और जो कलीसिया की जो प्रार्थना है वो सारे मुश्किलों को चिंताओं को भगाती है। Are you anxious about anything? और क्या आप कोई भी किसी के भी बारे में अगर चिंतित है Our number is coming on the और screen. हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा Our है number is coming on the हमारा screen. नंबर स्क्रीन पे आ रहा है Put a WhatsApp message. और आप व्हाट्सएप मैसेज को भेज The सकते हैं church will pray for और you. कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी The church will pray for और you. कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी The church will pray for और you. कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी Beloved, let me tell you. और प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ Let me tell you. और मैं आपको बताना चाहता The हूँ church has not given up. और कलीसिया जो है वो उठ चुकी है The church has not given up. और कलीसिया ने हार नहीं माना है The church has prayed all through the pandemic time. और कलीसिया सारे महामारी के समय में से गई है Many times people have died and their loved ones have died. और कई बार जो प्रियजन खो रहे थे लोग अपने अपने But still the church has not lost their faith. लेकिन फिर भी जो है वो कलीसिया ने अपने आप को बंद नहीं किया था It is not easy to take out the faith from the church. और ये आसान नहीं है कि कलीसिया एक विश्वास को ले Because faith comes from hearing and hearing God's word. क्योंकि जो विश्वास होता है वो सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से है Are you listening to God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे The हैं faith is coming in your life. और विश्वास आपके जीवन में आ The रहा chains है are going to get broken. और आपके जो बेड़ियां है वो खुलने The वाली Lord is है going to intervene. और जो लोहा है वो टूटने वाला है Can you loudly say today, क्या आप जोर से कह सकते हैं आज I will live and not die. और मैं जिंदा रहूंगा मैं मरूंगा I नहीं will live, not और मैं die. जीवित रहूंगा मरूंगा To नहीं proclaim the works of the Lord. अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं To proclaim the works of the Lord. अगर आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं I remember one incident और मैं एक घटना को याद करता when हूँ my mother became very sick. और कोई भी बीमार नहीं When my mother became very sick और जब मेरी माता बीमार थी बहुत and I was praying और मैं प्रार्थना कर रहा and I था was praying, और मैं प्रार्थना कर रहा but the था Lord took away my mother. लेकिन परमेश्वर ने मेरी माता को ले लिया But my faith was not shaken up लेकिन मेरा विश्वास हिला नहीं because I was knowing she's in the best place. क्योंकि मैं जानता था कि वो उत्तम जगह पर है She's seated along with Jesus Christ in heaven. और वो यीशु के साथ स्वर्ग में बैठी हुई है Peter was knowing what was going to happen to him और after that. और पत्र जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है मृत्यु के बाद Yes, after that you are going to sit along with Jesus. और मृत्यु के बाद वो यीशु के साथ बैठने वाला था There in heaven, a beautiful और place. वहां पे जो स्वर्ग है जो सुंदर जगह है But Psalmist says in Psalm 118 and verse 70, लेकिन भजनकार जो 118 में 17 में कहता है I shall not die but live मैं नहीं मरूंगा लेकिन मैं जीवित रहूंगा and declare the works of the और Jehovah. मैं यहोवा के कामों को प्रकट करूंगा I will declare the works of the Lord. और मैं यहोवा के वचनों को प्रकट करूंगा This is what the Lord is saying today. और यही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है Yes, I am going to show a miracle in your life. और हाँ मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार दिखाने वाला I am going हूँ to open the chains. और मैं वो बेड़ियों को खोलने वाला I am going हूँ to open the gates of iron. और मैं लोहे के फाटक को खोलने वाला हूँ I am the one who will do that. और मैं ही हूँ जो ये करूंगा Listen, my dear और friend. सुनिए मेरे प्रियो There was a question in your mind. और एक सवाल था आपके शायद मन में Who shall open the iron gate for और me? कौन है जो मेरे लिए लोहे के फाटक को खोलेगा The man who was lying at the Bethesda pool for 38 years had a question, who will put him in the water? और जो मनुष्य बेतसदा के फाटक के पास 38 साल से बैठा हुआ था उसके पास सवाल था कि मुझे उस पानी के पूल में कौन रखेगा The answer is the God will do for you. और जो उत्तर ये है कि परमेश्वर आपके लिए इस बातों को The करेगा answer is Jesus is going to do for और you. उत्तर ये है कि यीशु आपके लिए इन बातों को करेगा And the iron gate opened. और जो लोहे का फाटक खुल गया Bible says Peter came. और बाइबल कहती है कि पतरस वहां से गुजर गया Peter came. और पतरस
पतरस वहां से गुजर And he गया came to know, yes, this is not the vision, but the Lord helped him और out. वो जान पाया कि हाँ ये दर्शन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया है। The Lord rescued him from the hands of और Herod. परमेश्वर ने हेरोद के हाथ से उसे छुड़ाया। The Jewish people, what they were expecting, their expectation were not able to get fulfilled. और जो यहूदी लोग आशा रख रहे थे, उनकी जो आशा है वो पूरी नहीं हो गई। You know what happened? और पता है क्या Peter हुआ? came to that house of Mary. और पतरस उस घर के पास पहुंचा जो मरियम का घर था। House of Mary. और जो मरियम का घर था, House of Mary, the mother of John, who is called Mark. और मरियम का घर जो यूहन्ना की माता है, जिसे मार्क कहते हैं। Yes, Mary had opened her house for the church to और pray. मरियम ने अपने घर के खोला था ताकि कलीसिया वहां पे प्रार्थना करे। Let me tell you, blessed is that house where prayer takes place. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीर्वादित है, धन्य है वो घर जहाँ पे प्रार्थनाएं होती है। Especially when we pray for others, opening our house. और विशेष करके हम जब अपने घर दरवाजों को दूसरों के लिए खोलते हैं प्रार्थना के लिए। It is privilege to intercede for others. और ये सौभाग्य है कि दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना। I want to assure you, when you pray for others, the Lord answers your और prayer. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। He knows your heart. और वो जानता है आपके हृदय को। As I told you last time, God is having a ministry of help and praying is helping और others. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक सेवका ये कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना और मदद दूसरों की करना। सहायता करना, मदद करना। When you pray, you help और others. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दूसरों की मदद करते हैं। Yeah, Peter coming to the house of और Mary. यहाँ पे जो पतरस है वो मरियम के घर में आता है। He's standing at the door. और वो दरवाजे के पास खड़ा होता He's है। standing at the वो door. दरवाजे के पास खड़ा He's होता standing है। at the और वो door. दरवाजे के पास खड़ा And he होता है। started knocking. और वो जो है खटखटाने लगा। He started और वो knocking. खटखटाने लगा। He started और वो knocking. खटखटाने लगा। This is what Jesus said in the book of Revelation. और यही जो यीशु प्रकाशित वाक्य की किताब में कहता है। In chapter 3, और तीसरे अध्याय में, behold, I stand at the door and knock. और देखो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। Behold, I stand at the door and knock. और देखो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर And खटखटाता those हूँ। who open the door, और जो लोग दरवाजा खोलते हैं I will come inside them. और मैं उनके भीतर आऊंगा। Now let me tell you, Peter was knocking. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस दरवाजे को खटखटा रहा One who था। has ears, let him hear what the Lord has to say. और जो भी परमेश्वर बताना चाहता है वो सुने। Those who have ears, let him hear what the Lord has to और say. जिसके पास कान है वो सुने जो परमेश्वर बताना चाहता है। Peter knocking the और door. पतरस दरवाजे को खटखटा रहा था। Peter knocking the door. पतरस दरवाजे को खटखटा It's रहा था। time to knock the door of heaven. और ये समय है कि दरवाजे को खटखटाना। The church was knocking the door of heaven. और कलीसिया दरवाजे को खटखटा रहा था जो स्वर्गों का है। Peter was knocking the door of Mary's house. लेकिन जो पतरस है वो मरियम के घर के दरवाजे को खटखटा रहा था। The knocking was going on by the church because they were knocking the door of और heaven. जो खटखटाना वो कलीसिया भी शुरू था क्योंकि वो स्वर्ग के दरवाजे को खटखटा रहे The थे। church was already reached heaven. और जो कलीसिया पहले से स्वर्ग में पहुंच गई थी। And they would never heard somebody is knocking the door. और वो उन्होंने नहीं सुना कि कोई तो है जो दरवाजा खटखटा रहा है। There was a maid servant who heard someone knocking the door. लेकिन वहां पे एक दासी थी जिसने सुना कि कोई तो दरवाजे को खटखटा रहा है। And she heard Peter's और voice. उसने पतरस के शब्द को सुना Open the door. और उसने दरवाजे को खोला। Someone was saying, open the और door. कोई कह रहा था कि दरवाजे को खोलो, Open the door. दरवाजे को खोलो। Rhoda, the servant girl, said to the church, it is Peter on the door. और जो दासी थी उसने बताया कि ये जो है पतरस है जो दरवाजे पे खड़ा She है। recognized the voice of Peter. और उसने पतरस की आवाज को पहचाना। Let me tell you, it was the late midnight. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मध्य रात्रि का समय था। It was late और midnight. ये मध्य रात्रि का समय था। You might be sleeping, the Lord will knock the door. और शायद आप सो रहे होंगे लेकिन
परमेश्वर ने दरवाजे को You खटखटाएगा। might be praying, the Lord will knock the door. शायद आप प्रार्थना कर रहे होंगे लेकिन परमेश्वर दरवाजे को खटखटाएगा। Many times we are engraved in prayer so much that we forget God speaking to और us. कई बार हम अब इतने गहरे नींद में सो जाते हैं, We are engraved in prayer so much we forget God speaking to और us. प्रार्थना में हम इतने मग्न हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। Many people think prayer is only you talking to God. और कई बार सोचते हैं कि जो प्रार्थना ही है, Many people think prayer means only we talking to और God. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर से बातें करते They हैं, never expect God to talk to them in और prayer. वो कभी भी आशा नहीं रखते कि परमेश्वर प्रार्थना में उनके साथ बात They करे। believe prayer is one-way communication. और हर एक प्रार्थना जो है वो एक ही रास्ता नहीं है, This is what the church believes. और यही जो है कलीसिया विश्वास करती है, Many people believe this. और बहुत सारे कलीसिया इसके ऊपर विश्वास करते हैं, They had opened their mouth. और वो अपने मुख को खोलते हैं, Their ears were closed to the voice of और God. उनके जो कान है वो परमेश्वर की आवाज से प्रति बंद हो जाते हैं, Answer was there at the door. और जो उत्तर है वो दरवाजे पर था, The answer was knocking the जो door. उत्तर है वो दरवाजे को खटखटा रहा It's the था, time for the church to stop praying and to hear what God is और saying. ये समय था कलीसिया के लिए कि प्रार्थना करना बंद करे और उस आवाज को सुने। Let me tell you, beloved, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, you might be praying so many और times. शायद आप बहुत बार प्रार्थना करते होंगे, The Lord might have already spoken to you, और शायद परमेश्वर ने पहले से आपसे बात किया but you होगा, might have missed the voice of God लेकिन आपने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं होगा, because you are continuously praying. क्योंकि आप लगातार प्रार्थना ही करते रहते हैं, You don't hear God's voice. और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। Let me tell you, the church might have risen his voice to the highest extent because they are going to lose Peter tomorrow. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी स्वर्ग तक पहुंच गई थी, क्योंकि वो कल पतरस को खोने वाले थे। इतने ऊंचे आवाज में वो प्रार्थना करने लगते हैं क्योंकि कल आखिरी क्षण है, पीटर भी चला जाएगा, और कलीसिया बेचैन हो गई। उस बेचैनी में उन्होंने सबने अपने आवाजों को उठाया, इतना उठाया कि प्रभु की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही थी। पीटर जो उत्तर है उनके प्रार्थना का दरवाजे पर खड़ा है, खटखटा रहा है, कलीसिया सुन नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रार्थना में लगी है। उनकी आवाज इतनी बढ़ गई, उनको इतना प्रेशर है, उनके ऊपर इतना टेंशन है कि उनको कोई नहीं सुनने को लगता, वो कुछ सुन नहीं सकते। सारे टाइम उनका एक ही फोकस है, कल पीटर के साथ क्या होगा, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। And here Peter is standing at the door and knocking. और यहाँ पे पतरस से दरवाजे के पास खड़ा है खटखटाते हुए, The answer is very clear. और जो उत्तर है वो बहुत ही स्पष्ट है। You can't stop knocking till the door is open. और आप जब तक दरवाजा खटखटा रहे तब तक खोल नहीं सकते। Sometimes God might get fed up with you. और कहीं बार परमेश्वर थक जाता है आपसे। Oh, you know, so many messages you send to him. और पता है कहीं बहुत सारे मैसेज आप उसको भेजते रहते हैं। So many times you keep on ringing up his mobile. और कई बार जो है आप जो है वो आपकी आंखें है मोबाइल में नहीं, आप इतने बार उसको मोबाइल में फोन करते, परेशान हो जाता है। इतने कॉल, इतने व्हाट्सएप। कभी आपने देखा है ऐसा? और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? Bible says earnest praying is like this. और बाइबल कहती है कि जो लगातार ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, और कई उन काम नहीं जब बनता ना दूसरों से, वो कंटिन्यूस उनको फोन करते हैं, परेशान कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। जब तक वो परेशान ना हो और उत्तर ना भेजे तब तक वो फोन करते रहेंगे और व्हाट्सएप डालते रहेंगे। दिस वॉज द चर्च। और ये कलीसिया के लिए है। दिस वॉज द चर्च। और ये कलीसिया थी। दिस वॉज द चर्च। और ये कलीसिया थी। दिस वॉज द चर्च। और ऐसी कलीसिया थी। They made God fed up. और वो परमेश्वर को थका दिए। I do not know what was their faith level. मैं नहीं जानता था कि उनके विश्वास का स्तर क्या था। Before they had faced famine. और उन्होंने पहले अकाल का सामना किया Then था। they lost James. और उन्होंने याकूब को खोया था। Where is the prayer? और प्रार्थना कहाँ पे थी? Where is God? और परमेश्वर कहाँ पे था? Faith has already been shaken up. और उनका विश्वास पहले से हिल चुका था। But it is not easy to shake the faith of the church. लेकिन ये आसान नहीं था कि कलीसिया के विश्वास को हिलाना। The devil never thought the church will be like this. लेकिन
शैतान ने कभी नहीं सोचा कि कलीसिया ऐसी होगी The devil had to give up finally. और अंत में शैतान को ही हारना पड़ा The devil had to give up. और शैतान को हारना The पड़ा church never gave up. और कलीसिया कभी नहीं हारी The devil thought the church will be और frustrated. शैतान ने सोचा कि शायद कलीसिया थक जाएगी Let me tell you, और beloved, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो even though if you would have lost your beloved one in the COVID time, और शायद आपने अकाल के समय में महामारी के समय में अपने प्रियजनों को खोया होगा don't give up. और छोड़े नहीं The devil is going to get frustrated because you are still praying. और शैतान हारने वाला है क्योंकि आप अभी भी प्रार्थना कर रहे You know, हैं Peter, और पतरस the church started telling Rhoda, और जो कलीसिया है वो रुदा को कहने लगी Rhoda started telling Peter is at the door, Peter is at the door. और रुदा कहने लगी कि जो पतरस है दरवाजे पे है पतरस दरवाजे पे है She recognized the voice of और Peter. उसने पतरस की आवाज को पहचाना They said, Rhoda, you have gone insane. सॉरी Insane, पागल. और उन्होंने कहा कि जो रुदा है वो पागल बन चुकी है तू Oh, you can't expect Peter here. और आप पतरस को यहाँ पे नहीं पा सकते Peter is there in the और prison. पतरस बंदीगृह में है Peter has been chained और there. जो पतरस को वहां पे बंदीगृह बना लिया गया है 16 guards are guarding Peter. और वहां पे बहुत सारे सिपाही उसके पहरेदार It is हैं not possible. और ये संभव नहीं है It is not और ये possible. संभव नहीं है Many times the church prays for the rain. और कई बार जो है कलीसिया बारिश के लिए प्रार्थना I करती will है tell you an incident. मैं आपको एक हकीकत बताना I चाहता will tell हूँ you an और एक incident. घटना बताने There चाहता was हूँ no rain coming और कोई भी बारिश नहीं हो रही थी and famine was going और on. अकाल होए वो चल The रहा church था decided to pray for the और rain. कलीसिया प्रार्थना करने लगी बारिश के And they लिए all gathered under the sky. और वो सभी जो है स्वर्ग के नीचे इकट्ठा हुए And they stood there, wanted to pray for the और rain. वो प्रार्थना करने लगे बारिश के लिए They started praying for the rain. और वो प्रार्थना करने लगे बारिश के लिए There was one little girl और ये एक छोटी बच्ची थी वहां पे who opened the umbrella and who was standing there. और जो अम्ब्रेला जो है छाता लेकर वहां पे खड़ी थी They saw this girl और उन्होंने उस लड़की को देखा and they asked her, और उन्होंने उससे पूछा why did you brought the umbrella? और आपने इस छाते को क्यों लाया है Why did you open the और umbrella? आपने इस छाते को क्यों खोला है There is no rain. और बारिश नहीं है Let me tell you, मैं beloved, आपको बताना चाहता हूँ the प्रियो little girl had a faith. और छोटी लड़की के पास विश्वास था The little girl had a faith. छोटी लड़की के पास विश्वास When था we are praying for rain, the Lord will send the जब rain. हम बारिश के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर बारिश को भेजेगा And I should not be wet, so she brought the और umbrella. मैं भीगना नहीं चाहती हूँ इसलिए उसने अम्ब्रेला छतरी को लाया Many people pray, but they don't expect God to answer their और बहुत prayer. सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आशा नहीं रखते कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा They think impossible will not be possible till it is demonstrated. और वो ऐसा सोचते हैं कि जो असंभव है वो संभव नहीं होगा जब तक उसे उन्हें दिखाई नहीं देता Till they experience the और demonstration. जब तक वो उसका अनुभव नहीं करते Rhoda expected Peter at the gate. और जो रुदा ने पतरस को जो है वो दरवाजे पर उसको आशा किया Rhoda was knowing what was the status of और Peter. रुदे जानती थी कि जो पतरस के हाल क्या है But still she believed. लेकिन फिर भी वो उसने विश्वास किया Why? Because the church was praying. और क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही There is थी power in the prayer of the church. और कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ है There is power in the prayer of the और church. कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ है Bible says in the book of James, और बाइबल याकूब की किताब में कहती the है Lord answers the prayer of the righteous और one. परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है Elijah opened his eyes to the sky and he prayed and the rain came और down. एलिय्याह ने स्वर्ग की ओर देख प्रार्थना किया और बारिश आ गई Elijah opened his eyes toward the sky, prayed and the fire came और down. एलीशा ने अपनी आंखों को और स्वर्ग की ओर खोला और स्वर्ग से आग बरसा Who will open the gate? और कौन है जो दरवाजे को फाटक को Who will खोलेगा open the iron gate? और कौन है जो लोहे के फाटक को खोलेगा It is the Lord himself. और ये परमेश्वर खुद This is what Peter experienced. और यही पतरस ने अनुभव किया This is what Peter came to tell the church why they are praying for. और यही जो है पतरस जो उस कलीसिया को बताना चाहता जब वो प्रार्थना कर रहे थे He was knocking to inform them, but they were not ready to open the door. और वो दरवाजे को खटखटा रहा था लेकिन कोई दरवाजे को नहीं खोल रहा था You know what they said? Rhoda, that be the angel of the Peter. और रुदा
ये शायद पतरस का स्वर्गदूत होगा Peter cannot come. और पतरस आ नहीं सकता Peter cannot और come. पतरस आ नहीं But सकता Rhoda opened the door. लेकिन रूदा ने दरवाजे को खोला Rhoda opened the रूदा ने door. दरवाजे को खोला And Peter was standing at the gate. और पतरस दरवाजे के पास खड़ा था Peter was standing at the और gate. पतरस दरवाजे के पास खड़ा था Peter was standing at the gate. और पतरस दरवाजे के पास खड़ा Even if था I walk through the shadows of death, I shall not be afraid, because I know thy rod and thy staff is with me. और अगर मैं गहरे अंधकार से भी चलूंगा तो भी नहीं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है I will go through. और मैं उससे जाऊंगा I will pass through. और मैं इससे पार करूंगा You know why? Because it is the Lord who is with me. और क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो मेरे साथ खड़ा है There's a call today for your life. और ये बुलावट है आपके लिए, जीवन के लिए If you आज। are praying for something which you think the Lord is not answering, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि परमेश्वर इसका उत्तर नहीं दे रहा I है want to tell you, stop prayer, listen to God. God is whispering in your और ear. मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करना बंद करें और परमेश्वर सुने जो परमेश्वर आपके कान में बोल रहा Those है। who are listening on the YouTube today, और जो YouTube पे आज सुन रहे हैं the Lord is whispering in your ear. परमेश्वर आपके कानों में बात करेगा The Lord is whispering in your परमेश्वर ear. आपके कानों में बात करेगा Your disease, which is like an iron gate, the Lord says, I will open it out. और अगर आप कहते हैं कि ये लोहे का फाटक कौन खोलेगा तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस लोहे के फाटक को खोलूंगा। If your iron gate is financial crisis, the Lord says, I will open it out. अगर आपका जो लोहे का गेट है वो आर्थिक आशीष है तो परमेश्वर कहते हैं कि आज मैं इसे खोलूंगा। If your iron gate is a gate of depression, the Lord says, I will open it out. अगर आपका जो लोहे का फाटक वो निराशा है जीवन की तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस लोहे के फाटक को खोलूंगा। Today we are going to pray for Sandeep. और आज मैं हम संदीप के लिए प्रार्थना करने Today वाले we are हैं going to pray for Sandeep. और हम संदीप के लिए प्रार्थना करने वाले Sandeep, हैं। you think it is impossible? और संदीप क्या आप सोचते हैं कि यह असंभव है? Let me tell you, everything is possible for those who believe. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ संभव है जो विश्वास करते हैं। The verdict will come on your side, Sandeep. और जो वर्ड जो है वो आपके पास आएगा संदीप। The judgment will come on your side, और Sandeep. जो न्याय है वो आपके बाजू में आएगा The संदीप। church is praying. और कलीसिया प्रार्थना कर रही The है। church is praying. कलीसिया प्रार्थना कर रही We है। are going to pray for Ayush today. और हम आज आयुष के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। Ayush is going to walk in Jesus' और name. आयुष जो है वो यीशु के नाम से चलने वाला है। Ayush is going to walk in Jesus' और आयुष name. यीशु के नाम में चलने वाला है। We want to thank you. और हम धन्यवाद देना चाहते We हैं। want to thank you, और Lord. हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। We want to thank you, हम Lord. धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। We want to pray for that mother who is praying for the और child. मैं हम प्रार्थना करने वाले उन माता के लिए जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर The रही है। child who is suffering. और जो बच्चा है वो यातना से जा रहा है। The Lord has heard your और prayer. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। You should hear the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। Are you ready to give life to Jesus? क्या आप अपना जीवन यीशु के देने के लिए तैयार हैं? Yes. और हाँ, The Lord is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा The है। Lord is calling you. परमेश्वर आपको बुला You रहा है। expect miracle? क्या आप चमत्कार की आशा रखते हैं? Are you ready to give your life to Jesus Christ? क्या आप अपने जीवन को यीशु को देने के लिए तैयार हैं? Can you say as a mother, I dedicate my life to you, Jesus? एक माता होने के नाते क्या आप कह सकते कि मैं अपने बच्चे को यीशु को सौंपता हूँ? Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ Jesus is not only a miracle worker. और यीशु जो है वो सिर्फ चमत्कार करने वाला नहीं है Jesus is not only the healer, और यीशु सिर्फ चंगा करने वाला but नहीं है, Jesus is the way, the truth, and the life. लेकिन यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Jesus is the salvation for you. और यीशु उद्धारक है आपके लिए। You need to cross death and go towards eternal life. और आपको जो है मृत्यु से पार होकर स्वर्ग में जाना है। Mother, lay your hand upon the और child. जो माता है वो अपने हाथों को अपने बच्चे के सिर पर रखे। The child which is sick, you just lay your और hand. जो बच्चा बीमार है उसके ऊपर आप अपना हाथ रखे And the Lord is going to touch him. और परमेश्वर उसको स्पर्श We करेगा। pray for Brother Kennedy today. और हम भाई कैनेडी के लिए आज प्रार्थना I करते pray हैं the liver shall be renewed again. और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लीवर है फिर से दोबारा The बनने Lord पाए shall give new cells in the और liver. परमेश्वर जो है नवे
नया जो है वो वायिका को देने पाए, Yes, and the liver shall be और जो renewed. लीवर है वो नया बनने पाए। We pray in the name of Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, Pray in the name of और हम प्रार्थना Jesus. करते हैं यीशु के नाम से। Yes, the Lord is और faithful. हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य The है, Lord is और faithful. परमेश्वर विश्वास As He योग्य है। opened the iron gate, और मैं आपके लिए लोहे का फाटक खोलूंगा, as He opened the iron gate और जैसे उसने लोहे के फाटक को खोला in Peter's life, और पतरस के जीवन में, in the same way He shall open the iron gate in your life और too. वही फाटक लोहे का आपके जीवन में परमेश्वर खोलेगा। If you have heard our message today, अगर आपने आज के संदेश को सुना है, if you are blessed with God's word, अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, share with everyone whom you know. और सभी के साथ बांटिए जिससे आप जानते हैं। Share with the people who are sick in your family. लोगों को बताइए जो आपके परिवार में बीमार है, Tell them there is power in the name of Jesus. और यीशु में सामर्थ है, Just believe. और विश्वास करें, Just और believe. 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 विश्वास करें, You will definitely see the result. और आप निश्चित रूप से परिणाम को देखोगे। Earnest prayers are answered by और God. जो लगातार की प्रार्थना है वो परमेश्वर द्वारा सुनी जाती है। Let's raise our right hand today. और आइए अपने दाहिने हाथ को आज उठाएंगे, As we are going to keep 2 minutes of silence, और जैसे हम 2 मिनट शांत रहने वाले हैं, the Lord is going to speak to और us. परमेश्वर हमें बातें करने वाला The है, Lord is going to speak to और us. परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। Let's close our eyes. और आइए अपनी आंखों को बंद करें। Father, we pray for that child who is having viral encephalitis, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस बच्चे के लिए जो बीमार है, whose name is Shaurya. जिसका नाम शौर्या है। Lord, I pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, Touch him right now. और इसी समय स्पर्श कर। Thank you, God, for healing him. धन्यवाद प्रभु चंगा करने वाले के करने The के लिए। tears of the mother will not go in vain. और प्रभु जो प्रार्थना है माता की वो व्यर्थ नहीं जाएगी। Help them, Lord, to understand, God, और that you are the way, the truth, and the life. प्रभु उनको समझने के लिए मदद कर कि तू ही राह, मार्ग और जीवन है। Thank you, God, for every person who is watching us on the और YouTube. धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो YouTube पे देख रहा है, And the Lord have answered many prayers. और परमेश्वर ने बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। If your prayer has been answered, अगर आपकी प्रार्थना सुनी गई है, please send your message on this WhatsApp number. और कृपया करके आपके संदेश को WhatsApp के नंबर पे भेज सकते हैं। Thank you, Lord, for blessing everyone. और धन्यवाद प्रभु हर एक जन को आशीष करने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह का and the communion अनुग्रह of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की shall be संगति with us forever and हमारे ever. साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen and amen. आमेन आमेन। If you have liked our message, अगर आप हमारे संदेश को पसंद करते हैं, please share with others. और कृपया दूसरों के साथ बांटिए, Share with others, और दूसरों के साथ that बांटिए they shall be blessed. ताकि वो भी आशीर्वादित हो सके। Don't forget to press the bell icon. और भूले ना जो आइकॉन को If दबाने you के want to लिए। give something for God's kingdom, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ देना चाहते our हैं, account number is coming down और there. हमारा अकाउंट नंबर वहां पे आ रहा है, Bank details are also there. और जो बैंक खाते की I जो can say विवरण है, only one वहां thing, पे give है। and it shall be given unto और मैं you. आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, Pressed down, shaken together and और overflow. दबाकर हिला हिला कर और भरा हुआ। Amen. आमेन। See you next Sunday again. और अगले रविवार फिर मिलेंगे। Thank you for being with us. धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।